चलो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। सो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम तक किया है और थोड़ा आगे देखते हैं अभी। ओके, सो वी हैव कम टिल थेल्स थ्योरम, या जिसको आप बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो थेल्स थ्योरम कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल to intersect the other two sides in two distinct points, then the line divides the other two sides in the same ratio or proportionally। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, इस थेल्स थ्योरम के कन्वर्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। वी आर गोना सी द कन्वर्स। सो कन्वर्स में, as I said, our input clause will be the proportionality, and the output that we are going to get is that the parallel clause, ये आपका parallel आएगा। ठीक है, तो I don't think this proof nowadays comes, but still we will have a look at it। So let's have a look at that। So let's take one triangle। Okay, ये तो hang कर गया, एक मिनट रुको, yeah, 1 minute। ना आ गया ना, ओके। सो A, B, C and E and F। ठीक है, so what does the converse say? The converse is very nice। The converse says that if a line divides two sides of a triangle, if a line intersects two sides of a triangle in two distinct points and divides the two sides proportionally or in the same ratio, then this line should be parallel to the third side। It should be parallel to the third side, just उल्टा हो जाएगा। तो इसके प्रूफ में, क्योंकि ट्राइंगल्स में अभी उतने आते नहीं है, पहले आते थे, लाइक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम यूज करते हैं। सो वी यूज्ड टू से लेट EF not be parallel, हमें प्रूव करना है ना that EF is parallel। So we say let EF not be parallel, and let's say there is a point F dash। Now try to understand। We say EF is the original line and it divides it in the same ratio। मतलब हमारा given criteria क्या हो गया है? Our given criteria is AE by EB is equal to AF by FC। This is given criteria, and we have to prove that EF is parallel to BC। EF is parallel to BC, है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो what we say that let EF not be parallel to BC, मतलब method of contradiction, and let EF dash be parallel to BC। ठीक है, ये हमारा assumption है। We have an assumption out here, assumption followed by a assumption, construction followed by an assumption। The construction is we draw EF dash parallel to BC with an assumption that EF dash is parallel to BC। ये हमारा assumption। Now if that is the case, then जो BPT हमने proof किया था, from there we can say AE by EB should be equal to A F dash by F dash C। Now children, have you understood this? सुनिए, प्रॉब्लम में दिया हुआ है this by this is equal to this by this। हमने कहा EF is not parallel to BC, EF dash is parallel to BC। अगर ऐसा है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस पे लागू होता है, और वो कहेगा कि this by this should be equal to this by this। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को अभी कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, AF by FC is equal to F dash by F dash C। ठीक है ना, ये आया। अब हमें क्या प्रूव करना है फाइनली, हमें फाइनली प्रूव करना है कि EF is parallel to, EF कब इसके साथ पैरेलल होगा, जब ये मन का भ्रम दूर हो जाएगा that F dash is no other point, F dash should be F only। That assumption of ours has to be proved wrong। So what we do now,
इन दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, हमने 1 ऐड कर दिया दोनों साइड पे। तो इसको अगर हम 1 ऐड करने पे इफ यू टेक द एलसीएम you are with FC at the bottom, so it becomes FC plus this। तो ये साइड में क्या हो गया बेटा, AC हो गया, और ये साइड में क्या हो जाएगा, F' रहेगा, ये साइड में भी AC हो जाएगा। Two ratios equal to each other where the numerators are equal, the denominator has to be equal। That means यहां से क्या प्रूव हुआ हमें, FC must be equal to F'। I hope all of you have understood। Two ratios are equal to each other with their numerators also same, then the denominators has to match। So FC should be equal to F'। If FC is equal to F', such a condition can happen, ऐसा तभी हो सकता है where F coincides with F'। That means EF' and EF are the same thing, so EF is parallel to BC। So we say now क्या बोलेंगे, EF' is parallel and EF' and FC are same। तो criteria समझ में आया। So this is converse of basic proportionality। basic proportionality कहता है अगर parallel है तो ratio same है, हम converse proof कर रहे हैं, ratio same है, हमें proof करना है कि ये parallel है। तो अगर हमने क्या किया, हमने ये मान लिया that this and this are not two parallel lines but EF' is a parallel line। Now if EF' is parallel to BC, this by this should be equal to this by this, right? And it is given this by this is equal to this by this। दोनों के right side को equate किया, right side equate करने के बाद ये clause आया, अब दोनों side में 1 और 1 add किया, तो क्या सबको समझ में आया? Have you understood? Right, good। आशका मैडम स्टेज से जा रही है अभी भी बेसमेंट से। आप ये सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? इनऑर्बिट मॉल अभी खुला नहीं है बेटा। No, see, my cousin was going to college। ओह, तो सी ऑफ करने के लिए एपॉथ चले गए आज, मतलब ब्रेकफास्ट मैकडॉनल्ड से ही है एपॉथ में। हम ही लोग हैं पोहा हुआ खा के आते हैं यार, देसी खाना। ओ आलू पराठा नहीं होता बेटा, पराठा होता है। पराठा इज वेरी देसी। पराठा इज यू नो, जैसे 2 दिवाली होते हैं ना, हम जैसे लोग क्या विश करते हैं, हैप्पी दिवाली, और आप जो मॉडर्न वाला होता है ना हैप्पी दिवाली, तो दोनों में डिफरेंस है, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली। और हिपोक्रेटिक ग्रीटिंग्स देखा है एक, वो लड़कियों में बहुत ज्यादा हाय हाउ आर यू जो है ना, दैट इज दैट हिपोक्रेटिक ग्रीटिंग। और एक हग, मन में सबका क्या है, छुरी, हाय हाउ आर यू। ये सब में लड़के बेटर है। आई मीन यू कैन डिफर बट नहीं, सब चीज में बेटर नहीं है। बचपन में जब बच्चा बड़ा होता है ना, लड़के बड़े बदमाश होते हैं। इट इज ऑलवेज लविंग, नॉट दैट बिकॉज आई हैव अ गर्ल चाइल्ड, गर्ल्स को बड़ा करने का मजा है। लड़के क्या हो गया, उद्यंड सब जाके दीवार में लिखेंगे, ये वो तोड़ेंगे, उसके घर के सामने साइकिल चलाएंगे, बैल्कनी में कॉरिडोर में हल्ला करेंगे, किसी को मार के आएगा। हाँ, have you seen losing items? The frequency in boys is very high। So जो भी जाएगा साइकिल छोड़ के आएगा, इरेजर खो के आएगा, वाटर बॉटल खो के आएगा। तो क्या लूट के लाता था, ऐसे देख रहा है? अच्छा, हाँ वो तो बड़े होने से बिल्कुल स्पेंड करेंगे, वैसा ही होता है। तो उसके लिए बजर बट्टू तुम बनते हो ना, तुम वो बॉयफ्रेंड बनोगे जो जाके वही वाला कॉस्टली परफ्यूम दोगे, वो ऐसे ही स्पेंड करते हैं। गलती कहाँ है? यू शुड सी द रूट। बिल्कुल करेंगे, ये उनकी उम्र है। तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम जे हो रहे हो, इसको कहते हैं जे, मतलब समझे ना। चले आगे, चलो आइए। सो अभी आ जाते हैं एक रिकैप पे, बहुत जरूरी है रिकैप। ये चैप्टर में कंडीशंस जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिमिलैरिटी आउटकम्स, सिमिलैरिटी आउटकम्स। बिना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देख के आप कुछ तो कह ही सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना।
और ये सब ट्राइंगल के लिए हो रहा है भाई साहब। अच्छा, दूसरा क्या आपने देखा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। बेटा यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, बड़ी बात कह दी है मैंने, यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, नेमिंग में टिपिकली। अच्छा, इसके बाद आपने क्या सीखा, इसके बाद हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीखा, और इसके बाद हमने सीखा कन्वर्स सीखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। बेटा इतने नॉलेज पे ना आपका कभी कभी एक 5 मार्क क्वेश्चन बनता है, और इस पे तो बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस इसी पे बन जाएंगे। तो बी वेरी वेरी वॉचफुल ऑन दिस, ओके। इन ट्राइंगल्स जनरली वी गेट 2 1 मार्कर्स, एक असर्शन रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है, एक 5 मार्कर में भी आता है, ये फैला हुआ चैप्टर है, ठीक है भाई साहब। चले थोड़ा सा आगे, और अब कहानी आगे, आज का एपिसोड। आइए अब देखते हैं कि जैसे हम कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया देखते थे, अब हम देखते हैं सिमिलैरिटी, मतलब ट्राइंगल्स का क्राइटेरियाज देखते हैं। क्राइटेरियाज, 2 क्राइटेरिया तो हमें पहले ही पता चल गया, एक है एंगल्स इक्वल और दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। आज से शायद थोड़ा ढमढुम आवाज कम होगा, रात तक ढमढुम आवाज होते रहते हैं भाई। पीपल हु आर स्टेइंग इन एफ टावर, ई टावर, जे टावर, ऑल आई कैन हैव इज माय मर्सी फॉर यू गाइस। बी टावर से ही पागल हो रहा था। हाँ नहीं, पर पेंडिंग रहेगा ना 2-3 का, खुजली आज भी कम नहीं होगा, 2-3 लोग रहेंगे आज भी। तुम अपना होमवर्क एक दिन में थोड़ी खत्म करते हो ना। अजय मम्मी, हाँ बोलिए। 3 बजे तक। हाँ 3 बजे रात को जगा था, 3 वीडियो गेम खेल रहा था, ठीक है। आइए अब याद करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का पहला रूल क्या था, सांस। सांस भी कभी बहुत ही, तो यहां पे भी हम सांस देखेंगे, पर सांस में इक्वालिटी नहीं देखेंगे, प्रोपोर्शनल देखेंगे। और इसमें भी फर्क है भाई साहब, फर्क है, प्रोपोर्शनल देखेंगे। प्रोपोर्शनल यू विल सी फॉर द साइड्स, पर इसमें हम इक्वल देखेंगे। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स सपोज यू हैव गॉट 2 triangles, suppose you have got 2 triangles in which 2 angles are equal to each other, मतलब ये एंगल भी अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा, और मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये क्राइटेरिया हमने सेट किया कि a बटा सी इज इक्वल टू बी बाई डी। बी वेरी केयरफुल, छोटे का लिया तो यहां भी छोटे का। अब क्राइटेरिया कैसा बन रहा है देखो तो जरा, क्राइटेरिया हमारा कैसा बन रहा है, सांस का s प्रोपोर्शनल, और क्या था a और फिर s। समझ में आया? इफ यू कैन एस्टेब्लिश दिस क्राइटेरिया देन ऑल्सो 2 triangles आर प्रोपोर्शनल। इनके प्रूफ अभी और कोई पूछता नहीं है, सो राइट इट डाउन। इफ इन 2 triangles ratio of 2 corresponding sides and the angle included between them are equal, then the 2 triangles are said to be proportional to each other. अब खुद अपनी भाषा में लिख लो, क्राइटेरिया को नाम देना सांस। सांस में की सांस मिली तो ट्रायंगल को सांस आई। If in 2 triangles ratio of 2 corresponding sides and the angle included between the sides are equal, then the 2 triangles are said to be proportional. Yes, Bitu. कौन सा? That is approximately. Angad is dishonest. 2 मारना मतलब approximately dishonest है, मतलब उसके आसपास 1-2 बार कभी ऑनेस्टी दिखाता है, लेकिन वैसे डिसऑनेस्टी है। समझ में आ गया ना?
अच्छा, यहाँ पे एक मजेदार चीज है, अगर आपने ये क्राइटेरिया सेटअप कर दिया तो व्हाट डिड यू सेटअप? यू सेटअप दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then all these things will be applicable for the two triangles also, that the ratio of all three sides will be equal, all three angles will be equal to each other. Understanding? Clear? Anyone has any doubt? Remember, in congruence we go by equality, CPCT, corresponding parts of congruent triangle. यहाँ पे CPST हो जाएगा, corresponding sides or parts of similar triangles. चले? अच्छा, दूसरा, इसके बाद हमारा अगला क्राइटेरिया आता है, अगला क्राइटेरिया आएगा SSS. You can yourself write SSS. You already studied. अरे यहाँ पे यही तो SSS है, ठीक है? SSS का मतलब क्या है? पर SSS में आपको एक क्लॉज है यहाँ पे, all three should be proportional, not two. If all three sides, corresponding sides, लिखिए, if all three corresponding sides of two triangles, if the ratio of all three corresponding sides of two triangles are proportional or equal, then the triangles are said to be similar. मतलब क्या हो गया? A by C equal to E by F equal to D by, नहीं, not D, equal to B by D. If you can establish this criteria, not about two, हाँ, तीनों होना चाहिए, SSS. और ऐसे भी सोचो ना, कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए ये जितना फैलेगा ये भी उतना फैलना चाहिए, ये भी उतना ही फैलना चाहिए. अगर इन दोनों में रेशियो बराबर नहीं रहेगा तो हाउ विल दिस वन लुक सिमिलर टू दिस? सिमिलैरिटी मींस either one is the adult of the other, or one is the infant of the other, or both of them are twins. Two congruent triangles are similar, but two similar triangles need not be congruent. May be congruent, need not be. But two congruent triangles are always similar. They are just match on. ठीक है? Sir, is there any difference between SSS and the second? SSS नहीं, ये क्राइटेरिया, ये आउटपुट है. अगर ट्राइंगल सिमिलर हुए तो ये होगा. अगर ये हुआ, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि आप सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे. देखो, बड़ा अच्छा सवाल भी इसने पूछा है. ये जो आपने दोनों देखा ना, ये तब है जब इनपुट पे सिमिलैरिटी ऑलरेडी है. इन सब में क्या है? ये सब इनपुट है और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? सिमिलैरिटी मिल रहा है. यहां ऑलरेडी ट्राइंगल इज सिमिलर, तो फिर ये सब होता है. अच्छा बताओ, कॉन्ग्रुएंसी में दूसरा क्या है? इसके बाद ASA आता है. ASA से भी आपका प्रूव हो जाएगा सिमिलैरिटी. अच्छा, उसमें कोई महान चीज नहीं बोल रहा हूं मैं. देखो सर, सोचो, ASA क्या कहता है? इफ टू एंगल्स एंड द कॉन्ग्रुएंसी को देखते हैं. इफ टू एंगल्स and the side included between them are equal, then the triangles are said to be congruent. Now in similarity, already two angles are equal. Similarity बड़ा मजेदार है. दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल इक्वल होएगा ही होएगा. हमें साइड से क्या लेना देना भाई? हमें साइड से क्या लेना देना? तो A से हम क्या लिखेंगे अभी? If in two triangles, two angles and the side included, two angles से ऑलरेडी हो गया और आगे जाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी में हम एक और पढ़ते थे, AAS, मतलब एक कोरोलरी होता था, टू एंगल्स एंड साइड. ASS मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा फिर. तो हाँ, फिर नंबर भी वैसे ही मिलेंगे. टू एंगल्स, तो टू एंगल्स लिखने का मतलब क्या हो गया? थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली भी इक्वल. ठीक. SAS, SSS, ASA, फिर AAS कोरोलरी. अच्छा, AAA तो ऑटोमेटिकली, इसलिए ASA लिखते हैं. AA is already also a criteria. If three angles, we'll come to that. AAA is exactly the reverse of this one. SSS is reverse of this AAA. So if you see this or if you see this,
these two are sufficient for similarity. In fact, you don't need this. If two angles are equal, then the third angle has to be equal. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. तो अगर आप कॉन्ग्रुएंसी को याद करोगे, एसएस, एसएसएस, यहाँ पे एक एएस था वहां, या एएसए था, यहां भी वो आ जाता है. अब जो सीबीएसई ने निकाल लिया है आपके सिलेबस से वो है आरएचएस. लेकिन सीबीएसई क्लियरली सेज देयर इज वन प्रॉब्लम इन सर्कल व्हिच एम्प्लॉयज दिस. सर्कल मतलब जो चैप्टर हम इसके बात करेंगे, तो जरा इसको जान लेते हैं. सीबीएसई ने निकाला तो हमें क्या, हम देख लेंगे. ठीक है, ये सुनते हैं इसका मतलब क्या. इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये लेकिन स्पेशल कैटेगरी है. दिस इज नॉट एनी ट्राइंगल, एनी एरा गैरा ट्राइंगल नहीं है. इसके इनपुट में एक स्पेशल इनपुट है कि सबसे पहले ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. So yesterday our friend Atish had asked me to send some questions. तो देखना उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है. State and prove Pythagoras theorem. Earlier Pythagoras theorem was a part of this chapter. अब निकाल दिया है. Pythagoras theorem is proved by this similarity. Now you no more have Pythagoras theorem proof in your syllabus. तो कभी कभी जब questions बनते हैं ना, इसलिए I said use your discretion. एक दो question ऐसे बनते हैं जो actually no more in your syllabus. So once you see the pattern, you will get to know. I would rather say if you see 4 years question 2025, 23, 22, 21. 21 थोड़ा बारात वाला क्वेश्चन था, सब कोविड वाले बच्चे थे ना. तो 22, 23, 24, 25 more than enough. Two triangles are right angle triangles. अच्छा चलते हैं, आ जाओ. हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है. दो राइट एंगल ट्राइंगल, तो पहला इनपुट क्या होना चाहिए, दो राइट एंगल ट्राइंगल. तो हमने किसको प्रूव कर लिया बच्चा, आर क्राइटेरिया. हाइपोटेन्यूज को हमने प्रोपोर्शनल माना, ए बटा बी शुड बी इक्वल टू, और किसी भी एक साइड को, इसको ई एफ रख लो, इसको जी एच रख लो, थारो मर्जी, जी बाई एच और ए बाई बी इज इक्वल टू ई बाई एफ. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. हाँ, इसका क्राइटेरियाज ये वाला मैंडेटरी है. दिस इज मैंडेटरी, दिस एंड दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी. बाकी दो साइड में आप खेल सकते हो. सो हाउ डू यू राइट इट, ये सिलेबस में नहीं है फिर भी. इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड any one of the corresponding side, the hypotenuse and any one of the corresponding sides are proportional, then the two triangles are similar. समझ में आया. हाइपोटेन्यूज प्रोपोर्शनल होना ही पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे केस बड़ा सुंदर बन रहा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं. जरा देखो तो, जरा ऐसे अपने आप को क्रोकोडाइल समझो एक मिनट के लिए. हमारे राइट एंगल्स बराबर हैं और हम जो ये फैलाव फैल रहा है ना, ये प्रोपोर्शनल है. इसको प्रोपोर्शनल फैलने के लिए ये दोनों प्रोपोर्शनली फैलना ही पड़ेगा. सोच के देखो, दो वाइप, ये एंगल बराबर करके, अगर एंगल बराबर रखो दो वाइपर्स के बीच में, और ये फैलाव को, ये जो ऊपर वाला फैलेगा, इसको प्रोपोर्शनल करना है, तो दोनों जॉज एलिगेटर के, बेबी एलिगेटर, ममा एलिगेटर, उसके अंदर तुम्हारा चेहरा, अगर तुमसे नहीं बना तो. समझ में आया. ठीक है. लेकिन ये दिखने में जितना आसान है, ये उतना आसान है नहीं. ऐसे दे देने से तो कोई भी बच्चा लिख लेगा. ये आएगा कैसे वो देखते हैं. समझ में आ गया. आरएचएस फंडा, हैव यू अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन, डिड यू अंडरस्टैंड द फंडा ऑफ आरएचएस? right angle mandatory, hypotenuse mandatory, then you can play on any two corresponding sides. But when you play, there is where the option is, because in a right angle triangle, if you have a hypotenuse, then the other two sides, हाँ बोलो बेटा. अच्छा आप ऐसे कर रहे थे ना, मैं सोचा गणना कर रहे. Other two sides are not just sides. There is one which is a perpendicular, one which is a base. From here it is very easy to understand because I have drawn the triangles with the bases aligned to the horizontal. यही जब घूम के आएगा तो आपका दिमाग घूमेगा. Have you understood? You just can't play with any of the other two sides. The question is, sir, I know what you're trying to say. We'll play EF as E and F and we will play G and H. No. In exam, the mistake you will do is you'll
मेक ई विथ एच, ये कर दोगे आप, और जैसे ही आपने ये कर दोगे आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो देखते हैं एक क्लासिक एग्जांपल। रेडी? चलो, तो आइए बनाते हैं एक सुंदर सा बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल। यो, अरे वाह, जबरदस्त। बोलो कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें? 3, 3 है। बच्चा बच्चा बच्चे के मम्मी, समझ आ रहा है? यही 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 गड़बड़ होना शुरू होगा अभी। आ जाओ। और जो सर्कल वाला प्रॉब्लम है ना, उसमें ऐसा ही गुजरा हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी हमने लिया, समझ में आया? ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अब दूसरा वाला ट्राइंगल हम कौन ले रहे हैं? ए बी सी हमने एक ट्राइंगल लिया है, और एक और ट्राइंगल लेते हैं। जो भी ट्राइंगल आप लोगे उसका मिडिल में डी तो आना पड़ेगा, क्योंकि ये बी है तो डी मिडिल में आना पड़ेगा। अब जरा देखो, एबीसी का हाइपोटेन्यूज कैसे स्प्रेड है? AC इज द हाइपोटेन्यूज, AC ऐसे फैल के स्प्रेड है। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो आपको भी वही हाइपोटेन्यूज को फैलाना पड़ेगा। अच्छा, लेट मी नेम द ट्राइंगल। फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्ले विथ ट्राइंगल T1, राइट? फॉर ट्राइंगल T1, D is the right angle and B is the right angle. Agreed? Now if you look at the hypotenuse, hypotenuse को बिठा दोगे सब बैठ जाएगा। hypotenuse कैसे फैला हुआ है? A इस साइड, C उस साइड। अच्छा, उसी तरह इसका hypotenuse क्या है? AB है, तो हमें AB को फैलाना पड़ेगा। अब जब आप AB को फैलाओगे, आप उसे AB करके भी फैला सकते हो, BA करके भी फैला सकते हो, पर आपको देखना है दोनों ट्राइंगलों में A कॉमन एंगल है, तो A सामने आएगा, और दूसरा कौन सा साइड आएगा? बी आएगा। अगर तुमने ये चीज बिठा लिया ना, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम करेक्ट होगा। एक बार फिर से देखते हैं कैसे हम इसको बिठाते हैं। फिर से एक बार, चलो एक बार फिर से देखते हैं। लेट्स सी दिस वंस अगेन। सो, और T2 आप लोग मुझे गाइड करोगे एंड वी विल डू। लेट्स गो विद T1। वी आर ट्राइंग टू डू ट्राइंगल ABC। से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू T1 एज अ ट्राइंगल। अग्रीड? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सबसे पहले क्या करो, राइट एंगल को बिठा दो D। समझेंगे? इसका हाइपोटेन्यूज कैसे बैठा हुआ है? AC, A इस साइड, C उस साइड। इसका हाइपोटेन्यूज कौन है? AB। हमें AB को फैलाना है, BA करके भी फैला सकते हैं, AB करके भी, पर ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए इधर A आएगा और इधर क्या आएगा? B आएगा। ठीक है, अब आते हैं, से सपोज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू T2 एज अ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? T2। आइए, तो हमने पहले क्या लिखा? ट्राइंगल ABC, इसको हमने वहीं से फिर से ट्राइंगल D आएगा बीच में बेटा। ठीक है, अब कैसा है? हाइपोटेन्यूज BC है, C को अलाइन करना पड़ेगा भाई साहब, सीधे आएगा, बड़े सुंदर। ये आएगा एक सर्कल के अंदर घुस के आएगा ये डायग्राम। बात समझ में आ रहा है? और वो कैसे आएगा, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं। ट्रेलर, आइए ट्रेलर देख लेते हैं, सर्कल के अंदर कैसे घुस के आएगा। मेरा सर्कल ऐसा होगा, तो सर्कल में जाहिर सी बात है, वी आर गोइंग टू हैव वन से दिस इज द सेंटर, तो ऐसे करके मान लो एक तो पॉइंट बनेगा। ठीक है, और बनेंगे इस सर्कल के बाहर से 2 टेंजेंट बनेंगे। टेंजेंट तो तुम्हें पता ही है, ठीक है ना? लाइंस विच टच द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ऐसा एक टेंजेंट बनेगा, और उसी तरह एक और टेंजेंट बनेगा कुछ इस तरह, इस साइड से। अच्छा,
तब आप एक थ्योरम सीखोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। हाँ, ये लेंथ इक्वल होता है, अभी दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको मान लो PT ले लो और इसको PR। PT और PR बेटा हमेशा बराबर होते हैं। क्या होता है जी? बराबर होते हैं। और यहां पे जो बिंदु बना ना, ये जहां टेंजेंट एंड द सर्कल, सर्कल का एक ही पॉइंट पे टेंजेंट कटेगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्यों? क्यों समझ में आ रहा है? ये दो राइट एंगल, ये भी सिमिलर बनेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर ये दोनों सेम है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल बराबर होगा, तो ये दो ट्रायंगल, और जरूरत ही नहीं है ना, ए हो गया तो बस सिमिलर है, ए हो गया तो सिमिलर है, और ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट भी बनेगा। वेरी गुड RHS में। लेकिन इस प्रॉब्लम में जाके हम थोड़ा और भी इसके साथ बदमाशी करेंगे, मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, भाई हमारी मर्जी, यहां जाके खेल बिगड़ेगा आपका। अब देखो कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हियर इफ यू डू गड़बड़ी इन द नेमिंग, ठीक है ना, जैसे इसको T ले लिया, इसको O ले लिया, इसको M ले लिया, ठीक है? अब एक ट्रायंगल देखो, लेट्स टेक ट्रायंगल PTO। मान लो ये सिमिलर है, PTO में राइट एंगल कौन है? T है। छुटका में राइट एंगल कौन है? M है। तो राइट एंगल बना के M को बीच में डाल दो, ठीक है ना? PTO तो O को लास्ट में ले आओ भाई साहब, ये सीख गए तुम लोग। और टीवा को यहां बिठा दो, TMO हो गया, टॉमाहॉक मिसाइल, TMO। Did you understand? This problem is there in circles and in your pre-board and half yearly जो भी होता है, स्कूलों को बहुत मोहब्बत है इस प्रॉब्लम से। Which one? Again, PTO. Look at how I have written PTO. PTO लिखा है, T क्या है? राइट एंगल है, तो T हमने M यहां पे राइट एंगल है। अच्छा, यहां का ये क्या है? PO इज द हाइपोटेन्यूज, और यहां हाइपोटेन्यूज कौन है? TO। तो हमें TO को प्लेस करना है आइदर एज TO और एज OT। तो यहां पे O एंगल तो कॉमन बनेगा ना दोनों ट्राइंगल में। यहां O कहां है? अमर अकबर एंटनी पोजीशन पे है, इधर भी एंटनी पोजीशन पे डाला, तो फिर अमर किसको मिला? T को मिला। कॉमन बात है, समझ में आया? यही देसी टेक्निक। यहाँ पे अगर आप गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। और फिर एग्जाम में ये इज नॉट कमिंग रेशियो, पता नहीं ये ऐसा आता है, ये आ क्यों नहीं रहा, आएगा ही नहीं, ये एक प्रॉब्लम आएगा आपको, राइट? तो चले अभी कुछ थोड़े थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, विल टेक द ट्रायंगल एज OTP। वेरी गुड बेटा, चलो ट्रायंगल OTP is similar to, we'll play with the chutka. You want to play with the chutka? So let's play with the chutka. So where is your perpendicular at T? So it comes at M. Now OP is your hypotenuse. OP is spread. Here the hypotenuse is TO, which we need to spread. So how we will spread? Oh my God, OMG. OMG से OMT. तो आशका मैडम जैसा हो गया, OMT. Clear? और कोई डाउट? और क्या उधर OTP आ गया भाई साहब? क्लियर? तो ये RHS का आएगा आपको। RHS में पूरा झमेला होता है, कैसे हम पहचाने। चले, shall we? And there will be some 5 marker. Now how to do this chapter? First is for all your 1 markers. 1 markers में NCERT helps you less. The board, the previous year questions and the sample book will help you more in the 1 markers as well as 2 markers maybe. However, 2 या जो next section assertion reasoning में जो आता है उसमें, however in the 5 marker it is generally seen that you get a cheapo problem of NCERT. एकदम चेपो। तो इसका मतलब है एग्जाम्पल का कोई भी प्रॉब्लम छोड़ना नहीं है, वो आपकी जिम्मेवारी, मैं ना करूं। और एक्सरसाइज के कोई भी प्रॉब्लम को मत छोड़िए, ये भी आपकी जिम्मेवारी। एक देखना ट्रेपीजियम वाला प्रॉब्लम रहता है जिसका मुंडू कटा हुआ रहता है ना? कनिष्क था ना, गुप्ता पीरियड से पहले एक राजा, हेडलेस स्टैच्यू ऑफ कनिष्क, वैसा टाइप प्रॉब्लम है वो। हाँ बोल।
both the or questions. Let's say extra time and you attend both of them, then the teacher should consider the better Now, why do I think like that? answer. Am I an idiot that I will attempt both the or questions? No, why? पूछली क्या है? My friends do this. They attempt all the odd questions. मतलब जो जरूरत के ऐसे ही टाइम नहीं हो रहा है उसे और है। सर मान लीजिए रेड लाइट होते होते मैं निकल गया, उस वक्त ही जल गया, शटर उसका नहीं आया, मैं क्या करूंगा? डिस्क्रिप्शन है उसका। यू फॉलो क्रिकेट अ लिटिल बिट, पिचिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हिटिंग, उसमें क्या रहता है? अंपायर्स कॉल रहता है ना, बस अंपायर्स कॉल। उसको लगा नॉट आउट है तो नॉट आउट दिया, लेकिन आपको हॉकाई में क्या देख रहा है? कटाक करके बेल जुड़ रहा है, फिर भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या था? अंपायर्स कॉल। ये रू टीचर मिल गया, नहीं मिला, फिर पेपर कॉल करोगे, जीतोगे, एंड ऑफ द डे यू विल विन द बैटल, नो डाउट अबाउट दैट। काहे को सब रिस्क? यू शुड बी एबल टू फिनिश योर पेपर इन द स्टाइलिश मैनर। फॉगिंग बोलते हैं उस टेक्निक को, व्हेन यू कांट प्लीज समबडी। इन मार्केटिंग देयर इज कॉल्ड द 3 C's ऑफ मार्केटिंग: कन्विंस द कस्टमर, कंफ्यूज द कस्टमर और corrupt द कस्टमर। मेक श्योर द सेल इज मेड। वो यहां तक ही रहो हमेशा। ये जो आप बोल रहे हो ना, वो ये वाला स्टेप है। इसको दूसरा, थर्ड वाला तो अनएथिकल है, थर्ड वाला तो सोचना ही नहीं है। अगर मेरे ऑफिस में मुझे थर्ड वाला कोई दिख गया ना, आई विल रूइन हिज करियर फॉर एवर। थर्ड वाला इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड। और दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं? फॉगिंग बोलते हैं। यू फॉग द पेशेंट। हाँ, इट्स लाइक दैट, यू नो दैट विल बी, जैसे वो कॉमनली होता है शेयर मार्केट में। सर मेरे पास 20 शेयर हैं, उसके क्या ये शेयर मुझे रखना चाहिए, बेचना चाहिए? या वी सीइंग दैट मार्केट इज क्वाइट बुलिश, और जो पूछा उसका आंसर दो ना, उसको फॉगिंग। चलो चलने हैं। आइए, ये सब आप करना शुरू कीजिए। 8th नंबर प्रॉब्लम है, मतलब ये कैसा प्रॉब्लम है? 1 मार्कर प्रॉब्लम है। गाइस कैन सी इट ऑनलाइन? बच्चों, यू ऑल कैन सी दिस? ओके। In triangles ABC and DEF, see such triangles will not have any diagram given to you. Visualize करो और आंसर करो। B equal to E, F equal to C, मतलब दोनों सिमिलर हो गए हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। तो भाई साहब बना लो 2 ट्रायंगल ऐसे, इसका नाम है ABC और इसका नाम कैसे दिया है? DEF। तो ये है DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, ठीक है ना? Then the two triangles are क्या? हाँ, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी का तो यस में दे नो दे डोंट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। दे कुड बी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। 3 टाइम्स ऑफ डी, बस। हाँ, मैं 3 टाइम्स ऑफ डी, सो दे आर नॉट। तो कौन सा ऑप्शन लोगे इसमें? ऑप्शन डी। एवरीवन आई अंडरस्टूड? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना आपको क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है, बिकॉज दीज आर ऑल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। एनसीईआरटी में अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। वहां से वाई 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 भोजो और पहेली रहेगा, और बस पहेली बनता रहेगा तुम्हारा। अच्छा, नए किताबों में भोजो पहेली इज गॉन। There's no more Bhojo and Paheli. They've gone for vacation, you know. So if into triangles, चलिए DEF and PQR धीरे धीरे करो, कोई पहला आंसर देने में नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ये DEF है, ये PQR है। DEF और ये है PQR। इसमें क्या बोला है बेटा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q। बस पूरा डायग्राम ही गलत बनाया हो तुम। हाँ, तो इसमें कैसा बनेगा? एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, है ना? तो ये आपका PQR, ये है डायग्राम। ये समझ में आया तो अतीश? हाँ, अब आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? वो धमाल मूवी देखा है? ये एयरक्राफ्ट कैसे उतरेगा? सामने वो लाल बटन दिख रहा है, हाँ 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 दबा दिया, नहीं दबाना था। ये वैसा है। That's a lovely scene. नहीं दबाना था। बोलो विच इज नॉट ट्रू? ए में क्या बोला है बेटा? DE by QR, DE by QR is equal to DF, DF by PQ। यार ये तो ट्रू है भाई साहब, तुमने तो दबा दिया लाल बटन, है जी? कौन सा? अच्छा, डी वाले पे क्या लिखा है? DE by PQ। DE गलत हो गया भाई साहब, DE by PQ हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपका मानचित्र सही बनेगा। द मैप इज ओके, द मैप इज गॉन, यू गॉन। डिड यू अंडरस्टैंड? और हमने पहले जैसे शुरू किया था, जनरली हमारा फीलिंग क्या रहता है? DEF एंड ट्रायंगल PQR, सी दे आर वेरी क्लेवर।
Now you can say, sir, why did NCERT or CBSE use this naming? Did they ever use the word similarity? No. Then they are free. नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. If you write that the triangles are similar, then you can't afford to use this naming. But did they use the word similar in the whole question? No, sir, they are legally correct. इसीलिए, and why they are legally correct is nice question. They are trying to fool you in two places. The first thing we got fooled is DEF डाल के हमने PQR बना दिया. कॉमन है ना, मैगी मतलब ही टॉप रैमन, बना दो इसको, तो वो गलती मत करना. और दूसरा है लाल बटन नहीं दबाना. ठीक है, आगे चलिए, कीजिए ना, पेन वेन यूज करो यार, आंखों से क्या करते रहते हो खाली प्रॉब्लम में. लेजी लतीफ सब, मैं इतना सुबह उठ के इतना लिख रहा हूं, तुमने नहीं लिख नहीं भाई. ये कौन सा बेटा ब्रॉडवे होटल का समोसा बनाया क्या? हाँ, ब्रॉडवे का समोसा जैसा बन गया है. हाँ, तेजितस तो इस समोसा शीट. हम लोग 14 बच्चे थे उस दिन ग्रेड 9 में. 14, फुल हाउस इज 14 ऑफलाइन. सो द वेद को जानते हो? वेद वेंट टू गेट samosa from Broadway hotel. So they had onion samosa. He felt that the size is very small, so he brought 40 samosas, 14 की जगह, and the attendance was only 10 kids. So what is the dividend now? 4. So पहले लगा बहुत समोसे बच जाएंगे, बाद में सिर्फ दोनों पैकेट बाहर गए, सारे समोसे पेट में चले गए. और इतना सा केक, मेरे बकुल मेड चॉकलेट केक, उसमें 4 पैकेट ओरियो बिस्किट डाला है. आपका ट्यूशन के बारे में? हाँ, वो एक रोल मैंने बोला था, तो मुंह पूरा मीठा हो गया एकदम. आपको व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो में जीमेल लगाया, उससे आपका सेट क्रॉप करके दिखाया आपको. वो अपना स्टेटस वाला दिखाया, जिसमें मेरे को बटर मारने वाला फोटो वो दिखाया. ये टिपिकल आरएचएस टाइप प्रॉब्लम है. ये संडे को ना तेरे साहब बाल गिरेंगे, देखो मैल नरिश्ड बाल है तुम्हारे सब. सैटरडे को रात को तेल डाल दो, कम से कम संडे नहा लेना, मंडे से फिर फैशन मारना बालों में. क्या डालने से ऐसा होता है? ऐसा लग रहा है तुम्हारे बाल काट के ना सोफा के कुशन में भर सकते हैं कॉयर की तरह. रूखे बाल. सर 8 है आपका, एक बच्चे ने 8 निकाला है. ओके, 2 बच्चे 8 निकालो बच्चा. 8, 3 बच्चों का 8 आया है, उसमें 2 चिरेक और 1 बेंगलोरियन. अभी तक बाकी हैदराबाद लोगों ने अपना खाता नहीं खोला है. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट वांट मी टू डू, आई विल डू. और इस 1 नंबर का मार्क क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9. तुम तो ये पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो. क्या हो गया? बात तो वही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल. खेल किस में हो रहा है भाई साहब? आप लोग ना मजेदार लोग हो. ये T1 ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल पे खेल हो रहा है. बड़ा वाला ट्रायंगल क्या लिख लूं मैं? ट्रायंगल BAC. BAC किसके साथ सिमिलर होगा बताओ? BAC. तो यहाँ पे क्या डालूंगा? D डालूंगा. C दोनों में कॉमन है, तो C यहाँ पे डालूंगा. और क्या डालूंगा? ADC. बस अब हमें रेशियो लेना है. रेशियो क्या लेंगे बेटा? हमने यहाँ पे DC लिया है, यहाँ का DC लिया है, तो वहां का क्या लेना चाहिए? BC लेना चाहिए. ये दोनों हमें पता है, DC by BC. और यहाँ पे हमने AC लिया है, यहाँ पे AC लिया है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? DC लेंगे. Did you understand this decoding? How I did this? Look at these 2 triangles. They are similar. एक मिनट देखते हैं, चेक करेंगे करेक्ट है कि नहीं. कलर बदल लेते हैं. ओके, आ जाओ. क्या ये 2 हमने करेक्ट लिखा है? यू फर्स्ट चेक. लिखा है.
अच्छा, दोनों ट्राइंगल में एक 4 है और एक 16 है, तो इसके साथ हमें खेलना पड़ेगा। 4 क्या पार्ट है बेटा? 4 है डीसी। हाँ, तो डीसी यहाँ पे कैसे मेंशन्ड है? लास्ट के दो। अरे रुक जा ना रे भाई, आई मे बी रॉन्ग, वी आर चेकिंग इट, डोंट प्रॉम्प्ट। तो डीसी हमने क्या लिखा? लास्ट के दो। तो यहां इस साइड में हमें क्या लिखना चाहिए? लास्ट के दो। तो आइए लास्ट के दो लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये AC। द ट्रिक इज टू सी हाउ वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, DC by AC। अच्छा, यहां क्या निकालना है हमें? X निकालना है। X इज व्हाट बेटा? AC। AC किसके लिए है? छोटे वाले ट्राइंगल का AC। AC इज स्प्रेड 1 3। तो यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा? यहां पे हमें लेना पड़ेगा BC। Are we fine now? Has everyone understood? If you need one more round, I can explain you. Look at the two triangles we are playing with, the bigger triangle and the smaller triangle, where we know 4 and 16. So first find out where 4 is. 4 is DC, middle and last, divided by middle and last, AC. Followed by, you have been asked छोटा triangle का what? AC। छोटा ट्राइंगल का AC, द AC स्प्रेड 1 3, तो बड़ा ट्राइंगल का BC होगा। अब आपका आंसर चेक कीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC आउट हियर? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? X। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC हियर? हाँ, ऊपर में छोटे छोटे ट्राइंगल है। AC का वैल्यू कितना है? X। और यहां का वैल्यू कितना है? 16। तो कितना हो गया? 8 हो गया। x² = 64। ये RHS का प्रॉब्लम है। चले आगे, ऑल ऑफ यू ओके? कौन सा? बोलो ना। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज ही हो गए, इसीलिए इस नामांकन के साथ जाओ। कैसे आपने लिखा? चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब। 130 ट्राइंगल को घुमाया है आपके लिए। 22 28। सो ऑटोमेटिकली ये वाला 22 बनेगा, ये वाला 28 बनेगा। उस हिसाब से आप सिमिलैरिटी को लिखिए। तो यहाँ पे हमारे ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होंगे? यहाँ पे अगर हमने क्या लिया बेटा? L M N, तो ये सिमिलर होगा L। M की वैल्यू 130, यहाँ पे 130 कौन है? B, तो यहाँ पे B आएगा। अच्छा, L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 22 है, तो यहाँ पे A आएगा, A 22। और यहाँ पे N की वैल्यू है 28, तो C की वैल्यू। ये है सिमिलैरिटी। अब इस पे खेल लिया। हाँ, 8 डिकोड करना समझ में आया ना? देखना मैं एक जैसा, पर एक जैसा है नहीं। हाँ, पलट गया है, घुमा के दिया है तुमको। अब बारात में थोड़ी आए हो कि जो दिखाएगा वही देगा तुम्हें, है ना? बाद में आतिश का सब बोल दिया, आतिश जाओ एक ब्लैंक A4 पेज लेके आओ। वो एक A4 पेज लाके ब्लैंक को उसको फिर जेरोक्स करके फिर ला रहा है। सर ब्लैंक बोला ना, 2 लाने, फोटोकॉपी करके ला रहा है। समझे? एक ब्लैंक पेपर और लाने के लिए पहले ब्लैंक पेपर को फोटोकॉपी कर लिया, ब्लैंक आया था। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, before we do this problem, my request to you for our next class of mathematics, my honest submission to you guys will be, please do the NCERT problems on your own. I will keep one more class. I will bring board problems in which you will find that either some problems are replicating. If problems are replicating and you are able to do, fine. पर ये आप एफर्ट डाल के आओगे। अगर रेप्लिकेट नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद समय रहेगा तो हम सर्कल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, तब तक मेरा भी एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, वो भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? ट्राइंगल्स का ला रहा है तो इसका मतलब आज वॉशरूम नहीं जाओगे क्या? हाँ, तो फिर कल ट्राइंगल्स आ रहा है, अगले साल भी आएगा ट्राइंगल। अब इसका मतलब 2-3 दिन बैठ के ट्राइंगल ही करते रहेंगे क्या? स्कूल में फिर क्या करते हो? क्लास में मैम भी तो पढ़ाती होगी ना। लास्ट ईयर का वीडियो है, देखो।
तब तक मेरा ट्रायंगल का एग्जाम हो जाएगा। मेरे भी घर में खाना वाना बन चुका होगा, मुझे बड़ी बात है। एंड ऑफ द डे दैट इज हाफ ईयरली ओनली। CFD ट्रैश, फाड़ के फेंक दो। FKFD फाड़ के फेंक दो है वो। फाइनली मेन ही मेन है। ये देख लेते हैं। तो अगर आपको लगता है आप मेरी तरह हो तो आप अभी भी फाड़ सकते हो। One close match to me I have seen was her brother. Last year, he was my student. कितना उसको मैंने डांटा है, I cannot imagine. पर आज अगर बिरला ओपन माइंड्स में किसी का पोस्टर पे फोटो छपा है ना, उसी का है। You can ask last year's batch. सबसे ज्यादा किसको डांट पड़ता था? आदित्य। We used to cry, we used to have consoling calls, and an exact replica of what happened to me. I went through more worse actually, because I had a lot of social issues. मुझे बहुत बुली बदनाम करके देखा गया था। बट आखिर में श्रीशांत की तरह बैट हिलाने का मजा ही कुछ और है ना। 6 मार। चलिए बी ओके नेक्स्ट। ये सब बड़े प्रॉब्लम है शायद, नहीं 22 ये लगते हैं अगले क्लास में करेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो फ्रॉम देयर वी विल गो इन नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज डू देम एंड कम। एंड व्हाट आर वी डूइंग इन आवर नेक्स्ट क्लास? वी आर गोइंग इनटू रिफ्रैक्शन, द पेंडिंग पार्ट। They can also ask about like square and rhombus, area and These are picked from board problems. They will ask, nahi, they have asked, the better English is. हाँ, so what?